بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. بابا جی کا فون آیا کرتا تھا صبح 7 بجے 7:30 کے درمیان، تو میں موسٹلی سوئی ہوتی تھی. تو بابا جی نے کہا بیٹے بابے آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں بابا جی آپ حکم کریں. تو بابا باہر جا رہے ہیں یا کوئی اور کوئی گھر کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ انہوں نے بتانا کہ شاید کو بولو کہ یہ فلانے لڑکے سے کرا دے. اس زمانے میں یہاں پہ برکت بڑے تھے تو وہ وقت اور تھا. وہ نا جب بابا جی نے واپس آنا تو پھر بابا جی نے فون کرنا کہ بیٹے بابے بابا رات کو واپس آ گیا تھا. اتفاق ہے کہ ان دنوں میں 2 دفعہ کراچی چلی گئی. بابا جی کا فون آیا، میں دوسری دفعہ جب کراچی سے واپس آئی ہوں تو بابا جی کا فون آ گیا کہ بیٹے بابے بابا اسلام آباد جا رہے. یقین کرو عطیہ میں نے لگی کہ میں غرق ہو جاؤں زمین پٹے. میں نے اتنی شرم آئی، میں کیا بابا جی میں نے فون کر کے دس دینے کہ میں جا رہا ہوں. اور میں توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی کہ میں انہوں نے فون کر کے دسا بازی میں کراچی جا رہی ہوں. میں نے کہہ دینے بیٹے بابے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں کہا کچھ نہیں بابا جی مجھے تو بڑی شرم آ رہی. کہہ کس بات پہ؟ میں کہ بابا جی آپ بڑے ہو کے تو مجھے بتاتے ہیں اور میں تو بتاتی بھی نہیں ہوں اور آپ میں چلی جاتی ہوں. تو مجھے بڑے آرام سے کہتے ہیں بیٹے بابے نے تو آستانے پہ خبر کرنی ہے نا. اب آستانے والوں کی مرضی کہ وہ بتائے نہ بتائے. یقین کریں کہ اس بات نے نا اور شرمندہ کر دیا. اس کے بعد اتفاق کہنا میرا کراچی نہیں جانا ہوا. میں کہنا جاؤ. تو بابا جی کہتے ہیں بابے نے تو آستانے پہ خبر کرنی. مطلب وہ اتنے ذمہ دار، اتنے کوئی مطلب لفظ ہی نہیں ہے کہ کن لفظوں کے بارے میں ذکر کریں، تعریف کریں، کیا کہیں. وہ ایک عجیب ہستی تھی، وہ ہستی جس نے دوبارہ نہیں آنا. اور تم لوگوں کو کہتی ہوں اپنے استاد کی قدر کر لو. پھر تم لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے استاد کی قدر کر لو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. ہمیں تو پتہ تھا جیسے یہ دن سدا رہنے ہیں. ہاں ہمیں تو یہ پتہ تھا شاید یہ دن سدا رہنے ہیں. بابا جی نے جانا ہی نہیں کیا. شروع میں نے ان کا فون اٹھایا مجھے ان کی آواز کی پہچان نہیں تھی تو میں خوف زدہ سی ہوئی. مجھے خوف گیا آیا میری آواز تو کہتے ہیں بچے پوچھتے ہیں کہ امی جی کون ہے، کدھر فون ہے؟ میں کیا پتہ نہیں کوئی آدمی اس طرح کا جیسے نشئی ہوتا ہے کہ آواز ایسی ہے اس کی. ہاں تو میں ڈر کے رکھ دیا فون نا. موٹی کی آواز سے بولتے جیسے بندہ وہ نشے میں نہیں بولتا ہے ایسے. کاکا بابا ہیں پوچھو میرے نہ کوئی گل نہیں. تو میں نے ڈردی نے فون نہ رکھ دیا ریسیور سائڈ پہ. میں نے ویسے ان کو کہا کہ آپ سنیں، میں نے نہیں سننا. بعد میں مجھے پھر ان کی آواز کی پہچان ہوئی. مجھے پتہ چلا کہ یہ بابا جی کی آواز ہے. تو بابا جی اس طرح ہے. میں اس وقت تک ان کو ملی ہوئی نہیں تھی. ان کی آواز میں اتنا مطلب نشہ تھا یا خوف تھا یا کیا چیز تھی. ایک سیکنڈ لگتا تھا ان کو پتہ لگا. تو مجھے ہوتا تھا جب گھر آتے تھے نا تو مجھے ہوتا تھا میں ان کی طرف دیکھتی رہوں تو دیکھ نہیں سکتے تھے. مطلب ایسے ہوتا تھا جیسے ایک مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے ایسے ہوتا تھا. تو وہ پھر آنکھیں یوں کر لیتے تھے اور اکثر جب وہ اپنے دھیان میں ہوتے تھے میں ان کی طرف دیکھتی تھی تھوڑی دیر جو ٹائم ملا تب ان کی نظر پڑ گئی ایسا جیسے ان کی آنکھیں مقناطیس ہیں جیسے اپنی طرف کھینچتی. جب فرسٹ ٹائم میرے گھر آئے آپ کی چھٹی جوید کروا کے لے آئے اسی اس دن تارک نو یہ پوچھ کر تارک واپس چلا گیا. یہ کمرہ بھی ایسے چلا جاتا سی. میں ہفتہ کے کمرے چ نہیں جانی. میں نے کہنا میں آپ یہ کمرہ سمیٹاں گی. تو اوپر سے وہ بیڈ روم تو میں نہ سمیٹنا. تو اس دن بھی سیدھا ایئرپورٹ لے کے چلے سن. ایئرپورٹ انہوں چھوڑ کے واپس آئے تھے. جوید کہتا کہ بابا جی گھر آتے اتنے بھی میں ملی ہے.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਤਵਾਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਠਾ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ कमरे च बहुत कुछ बड़ा बिखड़िया है। हम दोनों ने आके भाग के टैची के जो वो छोड़ भी गई सी उसकी व्यक्ति मैं नहीं लेके जा रही, माँ जी खुद ही संभाल लेना। खींच के दूसरे बेडरूम में फेंके उसके टैची चीज़ें सारा बेड कवर बदलिए, नवे बेड कवर इन्ना ही चाह के बाबा जी आते थे। बेड कवर चेंज कर, तकियां दे कवर, बाथरूम मैंने साफ़ करवाया, फिर मैंने टॉवल नए रखे, मैंने बड़ा कुछ किया। अच्छा तो उतनी देर तक ना ये आ गए थे, आँख नीचे मैं लॉन्च में बैठ के पापा जी जवेद ने बिठा दिया। मैं ऊपर तो आई इसको कहने कि मुझे वाइट चादर दो, उधर रखनी है पाँव के नीचे। ये मैं कहती क्या मुझे तो, मैं आई तो सामने बाबा जी बैठे थे। वो पहली नज़र मेरी उनसे मिली ना बाबा जी से। मैं कहती हूँ वो ऐसे था जैसे उन्होंने मुझे यूँ अपनी तरफ खींचा, मकनातीस में जैसे था। मैं देखती रही उनकी तरफ, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, देखते रही कि मुझे चादर दो। इसने फिर मुझे नीचे से चादर से टावल फड़ाई, मैंने बेड पे वाइट चादर और टावल बाथरूम में रखा था। फिर मैं नीचे आई, मैं जवेद को कहा कि हम चले जो ले जाओ बाबा जी को बेडरूम में। तो इस तरह कहते थे तो मेरा आस्थाना है, मेरा आस्थाना है, मैंने अपने आस्थाने में जाना है। बाबा शिकार करके आया, बाबा फ्रौन मार के आया, सूर मार के आया है। मैंने कहना बाबा जी नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर चले जाना, ऊपर गर्मी है या ऐसे है। नहीं, बाबा अपने आस्थाने में सोएगा, अपने आस्थाने में सोएगा, सीधे नहीं छोटी बड़ी भी ऊपर चले जाते थे। मीना जी बाबा जी आपको क्या कहते थे? बिट्टा बाबा कहते थे और मीना जी भी कहते थे। हाँ मीना जी, मीना जी का कहते थे। शेरनी लकब दिया था उन्होंने। कहते थे मेरी बड़ी बहादुर काकी है, हर केस में हाथ डाल देती है, ना सोचती है। एक दफ़ा बड़ा मज़े का ना जेंट्स ने मैं किस्सा सुनाती हूँ इसी टाइप का, कि एक जनरल साहब का आया कि जी उन्हें जाके ना दुआ करानी है, रिटायर्ड जनरल, और बिल्कुल चल नहीं सकते थे और जोड़ों में दर्द और इतना ना। तो वो कैंट में ही उनकी जो जनरल का रूम है वहाँ गई वो दुआ कराने। साथ आबिद को मैंने कहा मैं पहली दफ़ा अकेले नहीं जाना, आप साथ चलें। आबिद थे, इरफान साहब थे, हम लोग गए उधर। तो जनरल साहब यूँ स्टेक से ना रंगड़ाते हुए आए, आके जी दुआ शुआ कराई और उनको कहा सूरत रहमान बड़ी बाकायदगी से उन्होंने सुननी शुरू कर दी। तो वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि ठीक हो गए। ठीक हुए तो फ़ोन आया उनका ना, पहले नहीं कौन था वो फ़ोन करता था। तो फिर उसने वो उन्होंने खुद कहा मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद बाबा जी ने एक सूरत रहमान का प्रोग्राम था, शायद अलहमदा ने बाबा जी कह लिए कि जनरल साहब से कहो कि वो आएँ और बताएँ। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि जी इस तरह से वो प्रोग्राम है तो आप आएँ और बताएँ। मुझे कहता है कि नहीं जी हम तो इस तरह के प्रोग्राम्स में तो मैं नहीं आ सकता, ना मैं पब्लिक में आके बताऊँगा। वैसे रोमीना मेरा असली नाम, वैसे रोमीना किसी दिन चलते हैं चाय पीते हैं। मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अपने मिशन से बड़ी कमिटेड हूँ और मैं उन दिनों में तो बिल्कुल नहीं होता, मैं नहीं चाय पी सकती। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने ना फ़ोन कर दिया दोबारा, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा बाबा जी जैसे ही ठीक हुए हैं तो तब तो मैं और भी यंग थी, तो मैंने कहा बाबे को मैं ही मिली थी। मैंने ना बाबा जी से शिकायत लगा दी। मैंने कहा बाबा जी देखें ये इन्होंने इस तरह से मुझे फ़ोन करना शुरू हो गए, बाज नहीं आ रहे, तो कहाँ के उनसे चला नहीं जा रहा था। अच्छा आपने मुझे दुआ कराने नहीं दिया जनरल के पास। फिर मेरे हाल है बाबा जी ने डॉक्टर जावेद से कुछ कहा था और उन्होंने फिर उसको कॉल करके कुछ ज़रा बातचीत की थी कुछ। फिर वो हाँ मतलब इस तरह भी लोग हमसे करते हैं। और औरत हो के ना, और साफ सी बात है ज़रा गुड लुकिंग भी हो और इस तरह का काम करना हो तो लोगों को इतने शक व शुबहात होते हैं कि पता नहीं किस किस्म की औरतें हैं जो घरों में जाके तो दुआएं करा रही हैं। और ये इतना ज़्यादा हमारे लिए हाँ वीक पॉइंट एक हमारा बन जाता था ना कि लोग इस तरह पे शक बहुत करते थे। जिसके मतलब पता चलना कि फ़लाँ के मियाँ को खुद ही फ़ोन करके बुलाती थी तो फिर उन्होंने बाद में शक करना कि बीवियों ने जब वो ठीक हो जाते थे या कुछ ना, फिर वो एक ये दुआ की ना अट्रैक्शन होती है, ये अब आप सबको पता होगा ना कि औरतें भी हों या मर्द हों तो दिल करता है फ़ोन करके बात करें, आवाज़ जैसे हमें बाबा जी से होता था।
تو وہ 2-4 دفعہ پھر فون ان کے آنے لگ جاتے تھے جی اب یہ ہے اب ایسے کر لیں ایسے کر لیں، تو بیویاں ساری جیلس ہو جاتی تھیں. یہ بھی ہم نے بڑا وہ برداشت کیا ہوا ہے. الٹا مطلب نہیں ہے، آپ تو زور لگا کے پیارا بننا پڑتا ہے نا میک اپ. نہیں خیر، لیکن یہ ہے کہ ویسے عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے یہ کام مشکل ہے. اور اس وقت تو اتنا کام ہی وہی دیتے تھے کہ جاؤ جا کے تو دعا کرا کے آؤ. تو ایک دفعہ عالیہ جی اور ہم لوگ نہ گئے وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل. پہلے اجازت لی، اجازت نامے لیے، پھر بابا جی کا آرڈر تھا کہ جیل میں جا کے دعا کراؤ. پھر ہم ادھر گئے، وہاں جا کے تو عورتوں میں میں نے دعا کرائی. میں نے پہلی دفعہ کوٹ لکھپت جیل دیکھی. مردوں میں میرا خیال ہے عالیہ جی کی میاں نے کروائی تھی، اور فارنر عورتیں وہ جو نہیں ہوتی افریقنس اونچی لمبی، ان کی علیحدہ بیرکس تھیں، اور پاکستانیوں کی علیحدہ تھیں، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ نا، مطلب جن کے بچے تھے. ہاں آپ بھی تھیں، مجھے سارا بھول گیا. کو آپ تھیں، عالیہ جی تھیں، یاد آ گیا سارا سین. ہاں مجھے بھی سین. اس زمانے میں تو ہمیں بھیجا بہت کرتے تھے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، اور گھر میں کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے نا. بڑے ڈرتے بڑھتے کس طرح سے ہم جاتے جھڑکے. میری جی آپ کیسے ملی تھی بابا جی سے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں خود بڑی بیمار تھی، میری اووری پہ نا سسٹ بن جاتی تھی. 2 دفعہ میرے میجر آپریشنز ہوئے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا پیس رہ جائے تو وہ دوبارہ فارم ہو جاتا ہے. وہ 3rd ٹائم بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس گئی تو کہنے لگی کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اورنج سائز، اینی ٹائم پھٹ جائے گی، پوائزنس ہے، یہ ہو جائے گا تمہیں، وہ ہو جائے گا، تو فوراً آپریٹ کراؤ. تو میں نے سوچا مجھے نا ایک تو ان دنوں میں آپریشن کے سچی بات ہے پیسے بھی نہیں تھے کیونکہ کافی پیسے لگتے تھے کافی، اور دوسرا یہ کہ میں تنگ آ گئی تھی. میجر آپریشنس کوئی آسان تھوڑی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی اس دفعہ تو میں نے آپریشن کرانا ہی نہیں، چاہے پھٹ جائے جو بھی ہو. میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ویسے ہو جاتے. میں کہا میں دیکھتی ہوں کیا ہوگا، مر جاؤں گی تو اچھی بات ہے. ہاں وہ مرنا تھوڑے تھا. بہرحال عابد کہنے لگے کہ ان کو سلمان صاحب کے تھرو پتہ چلا تھا کہ اس طرح بابا جی نے کسی نے بتایا ہوا تھا. اور پھر یہ ملے نہیں تھے، اجازت نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں، ہے نا. شروع میں بابا جی کو نہیں تھا کہ ہر کوئی مل لے. وہ پہلے اجازتیں لینی پڑتی تھی، کچھ مہینے لگتے تھے، پھر جا کے خیر عابد کہیں گے ہاں میں نے ایک بابا جی کا سنا ہے کہ ان کے پاس لوگ چارپائیوں پہ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں تمہیں وہاں نہ لے جاؤں. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، میں وہاں چلی جاؤں. وہاں پہ پھر جی ہم گئے بابا جی کے بھاٹی والے گھر میں. تو پہلے جب گئے نا تو وہاں مین سے باہر جو گیٹ ہے نا وہاں گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی، اور پیدل اندر گلیاں تھی چھوٹی چھوٹی، ان میں جاتے تنگ گلیاں. ادھر گئے نا تو جب بابا جی کا گھر کچھ قریب آیا نا تو مجھے ایسے باقاعدہ نا ایسے فرش گلی کا لگے کہ یوں ہل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. اور میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز، ایسے لگے دل دھڑک اوپر آ گیا میرا بالکل. میں کہوں اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے، چکر سے آ رہے ہیں، مجھے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا عابد ان بابا جی کا گھر کہیں قریب تو نہیں آ گیا. مطلب مجھے لگا کہ ہم بابا جی کی وجہ سے ہے. تو کہیں گے ہاں ہاں بس یہ سامنے نا ایک گلی مڑ کے تو آ گئے. پھر خیر گئے تو سیڑھیاں ہوتی تھیں، چھوٹا سا گھر. کبھی لیلا کا آپ نے دیکھا ہے ان کا جا کے کتنی ان کے بڑے زنان خانہ علیحدہ، مردان خانہ، 2 کمروں کا گھر بابا جی کا، اور اسے آسمان نظر نہیں آتا تھا. اتنا چھوٹا سا گھر، اس میں بابا جی. خیر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے تو مجھے نا سامنے کمرے میں جہاں لیڈیز نے بیٹھنا ہوگا یا کیا ادھر بٹھا دیا. تو آگے چلے گئے بابا جی کے کمرے میں. وہ میں 15-20 منٹ بیٹھی رہی، کوئی نہ آیا نہیں، کوئی خاتون بھی نہ مجھے نظر آئی. تو اتنے میں بابا جی کو پتا تھا یہ آ گئی ہے، ان کو تو آئیڈیا ہو گیا نا. وہ خود اٹھ کے آ گئے اور سامنے کمرے میں آئے. کوئی چیز میں نے دیکھا، میں نے سوچا یہی ہوں گے. تو میں نے سلام کیا تو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹا بابا. سامنے کمرے میں آ گئی. ادھر 1-2 کمرہ سارا بھرا ہوا تھا، مرد بھی عورتیں بھی کافی لوگ. تو میں جیسے ہچکچاتی ہوئی جا کے بیٹھی تو بابا جی کا گدا ہوتا تھا، جو انٹر ہوتے تھے ساتھ ہی گدا تھا اور کمرہ چھوٹا تھا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے نیچے. میں پھر جا کے گدے پہ بیٹھ گئے، گدے کے پاس بیٹھ گئی. یہ بابا جی جیسے اپنی باتیں کرتے ہیں وہ کراتے رہے. میری آنکھیں بند کراتے تھے، بیٹا بابا آنکھیں بند کرو، اب کیا نظر آ رہا ہے.
مجھے کوئی دربار نظر آیا، بڑے بڑے پلرز اور محرابیں بنی ہر چیز، تو بابا جی وہ ہے اس طرح کا، کہتے فلاں دربار گئی ہوں، بابا جی مجھے کبھی نہیں گئی، کہتے ہیں یہ وہ ہے، اچھا آنکھیں بند کرو، انہیں لگا نا کہ یہ کچھ ذرا تماشا کر لی، آنکھیں بند کرائیں، اب کیا نظر آ رہا ہے، پھر مجھے کچھ اور نظر آیا، میں کہا بابا جی وہ نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ گئی ہوں، نہیں یہ وہ جگہ ہے، مطلب انہیں ساری پہچان جیسے تھی. پھر جی انہوں نے دعا کرائی، پانی پلایا، تو کہتے ہیں کیسا لگا، کہا جی جیسے کچے گھڑے کی مطلب والے گھڑے والے پانی کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ ہے. پھر انہوں نے شعر پڑھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز برسا کی، تو اس وقت ظاہر ہے سر کے اوپر سے گزر گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بعد میں سوچیں سمجھیں. تو بابا جی کے پاس جتنا ٹائم گزار کے آئی، جب واپسی پہ اٹھ کے جانے لگے نا اجازت لے کے، تو ایسے قدم کے من کے ہیں، چلا ہی نہ جائے، ہے نا، ان کے پاس بیٹھ کے سارے جسم میں ایسے ہو جاتا تھا بھاری، تو میں کہوں میں جلدی ساری چل کے جاؤں گی کیسے، لیکن خیر گرتی پڑتی عابد کا آہستہ آہستہ کے پیچھے کے خیر چلے گئے. گھر جا کے میں اس صوفے پہ بیٹھ گئی، میں نے کہا ان کو سوچنے لگی کہ وہ کہہ رہے تھے جاتے ہی دعا کراؤ. اچھا سب سے مزے کی بات کہ بابا جی نے مجھے کہا کہ تمہاری پہلی ملاقات تمہاری بچپن کی کوئی سہیلی ہے، سادات میں سے ہے، جاؤ جا کے اس کو دعا کراؤ، بڑی مشکل میں. اچھا بابا جی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ میری کوئی ایسی سہیلی ہے، اور یہ وہ واقعی تھی شیعہ ہے سادات میں سے. اب خیر وہ تو میں نے سنی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں گھر آ کے جس صوفے پہ بیٹھی نا، یقین کریں کہ میں 4 گھنٹے اسی صوفے پہ بیٹھی رہی، مجھ سے اٹھا ہی نہیں تھا جاتا. میں اٹھنے کی کوشش کرتی تھی لیکن میں جسم اتنا بھاری ہو گیا ہوا تھا، میرا ٹانگیں اتنی بھاری ہو گئی تھی اور وہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں بیٹھی. آپ کہیں گے ہاں ایسے ہی ہوتا بزرگوں ایسے ہی ہوتا. میں نے کہا اچھا. پھر خیر میں اگلے دن وہ کینٹ میں میری دوست تھی اس کے پاس گئی، اس کو میں نے کہا کہ ایک بابا جی کو ملی ہوں، انہوں نے مجھے تمہارا بتایا، تو تمہارے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کیا حالات ہیں اس کے. تو کہنے لگی کہ اس کا یہ تھا کہ سسرال میں رہتی تھی، ایک کمرے میں 2 بیٹیاں، اور اس کا خامد انگلینڈ گیا ہوا تھا انلیگل، وہ آ نہیں سکتا تھا، یہ جا نہیں سکتی. اور ایک بیٹی تو اس کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے تصویریں ہی دیکھی تھی کہ یہ ہے. وہ کہنے لگی کہ بس میں سسرال والے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، روئے کہیں گی وہ آ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتی، یہ کیا زندگی ہے یہ. میں نے کہا اچھا تم اس طرح سے نا سورۃ رحمان سنو، یہ سورۃ رحمان ذرا بعد میں بلکہ انہوں نے دی تھی دعا کرنے کے بعد، دعا اللہ والی وہ کروائی. اس کو کہا کہ یہ تم باقاعدگی سے شروع کرو، یہ کرو وہ کرو. خیر اس کو بتا کے آ گئی. نہیں اس نے مجھے یہ کہا کہنے لگی کہ میں نے تھوڑے دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک کمرہ ہے اس میں بیٹھی ہوں اور میں بہت رو رہی ہوں، تو ایک بزرگ آئے ہیں دروازے پہ. میں نے کہا ریا بتاؤ. کہتی ہے کہ دبلے پتلے سے ہیں، ذرا لمبے ہیں اور ٹوپی سے پہنے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے جھک کے دروازے سے اندر آئے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، آج سے میں تمہارے ساتھ. میں نے کہا واقعی یہ کوئی، یہ آپ لوگ دیکھیں کوئی اسپرچل لنک کیسے ہے کہ میں گئی، مجھے بابا جی کو کیسے پتا تھا کہ وہ کون ہے. اور چونکہ سادات میں سے تھی تو شاید اس کے آنسو پہنچتے ہوں گے، اور میرے آنے سے ان کو ہوا ہوگا کہ اس کی سہیلی ہے یا میں اسی کی خاطر میں دی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا تھا. بہرحال وہ اور 2 مہینے گزرے تو اس کا فون آیا بڑی خوشی سے کہ وہ آ رہا ہے. لیکن اس نے پہلے بھی ایسے کیا، اس نے سامان بھی ایک دفعہ بھیج دیا تھا، پھر بھی نہیں آیا تھا. وہی ٹائم ہے جب وہ جہاز سے سیڑھیاں اترے گا اور میں اسے دیکھوں گی. میں نے کہا اچھا اللہ کرے گا وہ ٹائم بھی آ گیا. بہرحال پھر وہ آ گیا. اچھا پھر آپ کی سس؟ میری سس تو مجھے بابا جی نے دعا کا کہا. اچھا مجھے نا یہ انگلیوں کے ایک جوڑ میں درد ہوتی تھی، اتنی تکلیف تھی، اور میرا پورشن اوپر تھا تو میں سیدھا روتے ہوئے چڑھا کرتی تھی، اتنی درد ہوتی تھی مجھے. اور مجھے تھوڑے دن ٹخنوں میں تو تھوڑے دن بعد میں ایسے ایسے کر رہی، تو میں نے کہا ٹخنوں کی درد نہیں ہے، ہو رہی. ہاں چیک ایسے ہی یاد آیا تو یوں گھمایا، کوئی نہیں تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ
पीरियड्स होते थे ना तो मुझे 10 दिन पहले पेन उसकी सिस्ट की वजह से शुरू हो जाती थी और मैं कोई सारे घर को बताता था और 3 दिन उल्टी पड़ी हुई है तो इसको पीरियड्स हैं। वो जी मेरी दर्दें रास्ता गायब होना शुरू हो गई, पहले एक हुई फिर दूसरी हुई फिर उंगलियाँ सुबह उठ के ऐसे ऐसे उंगलियाँ भी ठीक है, हाँ भी ठीक है, तो काम ही हो गया। कोई 2.5 महीने मुझे लगे नहीं दर्दें ठीक हो गई सारी। फिर मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैं बाबा जी ने डे 1 से ही कहा था कि जाओ बेटा बाबा लोगों को तेरे तो खानदान के पीछे पागल खड़ा हुआ इतना बड़ा बुजुर्ग है। और वो हैं अभी भी मुरीदके में हैं, साईं बोरी डस्के में होते थे, मैंने बड़ी दफ़ा उनका जिक्र किया हुआ। और वो नीचे सारे नंगे होते थे, सर्दियाँ गर्मियाँ दुबले पतले पसीना भी नज़र आती थी उनकी कमजोर थे और नीचे उन्होंने बोरी बांधी होती। तो उनका नाम ही साईं बोरी था। तो साईं बोरी जो थे वो हमारी फैमिली में मेरी दादी बड़ी मोतकिर थी, मेरे अब्बू बड़े मोतकिर थे, तो वो फिर साईं बोरी से ही हमारा फैज़ चल रहा था और दुआ चल रही थी। तो वो कहने लगे तेरे तो ख़ानदान के पीछे बहुत बड़ा कोई बुजुर्ग खड़ा है। बस इस तरह बाबा जी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर घर में उसके बाद कसूर वाला वाक़या हो गया। मैं वही पूछने लगी। हाँ पूछे वो बड़ा वो ज़िंदगी तो वो ये हुआ कि बाबा जी ने हमारे सबको कहा कसूर में इसके बुजुर्गों का है ना दरबार है, तो वहाँ पे उर्स होता है, मेला जैसा लगता था और धमाल होते थे। तो ये आबिद वगैरह सब बड़े नए नए से थे, इन लोगों ने कभी जिन्होंने इस ज़िंदगी में कदम ही नहीं रखा उनको क्या पता ही क्या है। बहरहाल जी कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं उधर जाना है, तो मैं उनके साथ ना जाऊंगा। हम लोग जाएंगे कोई शाम को कसूर और रात तक हम आ जाएंगे साढ़े। चलो ठीक है जाए। और साथ हमारा एक वो लड़का था हमारे घर में काम करता था पार्ट टाइम, वो भी चला गया कि ये भी जा रहा है, तो हम लोग रात को आ गए। अब जी वो चले गए जब 10 बजे तो फ़ोन था, मोबाइल नहीं होते ही नहीं थे। कहूँगी अल्लाह 10 बात हैं किधर से पता करूँ क्या करूँ, कोई फ़ोन करने वाली जगह भी नहीं। ऊपर था मेरा बेडरूम पोर्शन ही ऊपर था, मैं खिड़की में खड़ी, जो गाड़ी आए उसकी लाइट देखूँ, जो आए या 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, कोई खबर नहीं। दिल मेरा बड़ी जोर जोर से धड़के कोई यादा हो क्या गया, किधर है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ना माफ करे क्या हो गया। अब वापस नहीं आए, सारी रात मैं खिड़की में खड़ी रही, सुबह के 6 बज गए, आबिद ही नहीं आए। और मेरे ससुर बड़े सख्त, मतलब ये तीनों फकीरों के क्या जाली फकीर होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। गिरता पड़ता ना 6 बजे, मुझे लड़का था ना वो पहुँच किसी बस में बैठ के, तो वो कहने लगा अब्बा जी बाहर ही इंतजार में, आबिद ही नहीं आया सारी रात। हमारे घर में है ना जब तक बच्चे ना आ जाए अब्बा जी भी परेशान, जैसे बड़ों का इकट्ठे रहते होते हैं। मैं ऊपर परेशान हूँ, नीचे कहीं फिरते रहे। तो वो कह लगा जी उधर ना नाच गाना हो रहा डांस हो रहा था, पुलिस ने छापा सबको पकड़ के जेल में। अच्छा वो धमाल तो मतलब जब तक आप लिंक नहीं होते आपको समझ ही नहीं आती, तो लोग यही समझते हैं कि डांस हो रहा था। तो वो वाकई उस वक़्त कोई धमाल ही पड़ रही थी और उन लोगों ने जान के किया था बाबा जी से। शायद जी आप लोगों को तो पता होगा ना सबको कि जो डीसी था ना उसकी कोई हारबाजी थी बाबा जी से। कहते हैं आबिद कि उसने खुद हमें गाड़ियाँ हूटर वाली गाड़ियों में बाबा जी को लेके गए अपने घर या जहाँ पे भी लेके जाना था, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद उनको वहाँ पे उनका जब कोर्स शुरू हुआ धमाल हुए, उन्होंने ही छापा मारा। अखबार में अगले दिन खबर आई कि पीर काकी तार कब्रिस्तान के पास नाच गाने की और अच्छा अब्बा जी तो उस दिन से अब्बा जी इतने अगेंस्ट हुए ना कि वो मुड़ के नाम ही नहीं कुछ सुनना चाहते थे कि वहाँ पे ये लोग डांस करते हैं और ये करते हैं। और फिर उनके कोई ज़िंदगी में कभी नहीं खाने गया था तो आबिद जो है वो खाने पहुँच गए और उनको अंदर खा दिया सब। अब वो मैंने भी सुना, मैं कहीं याद आता। फिर मुझे वो सायरा और सलीम वगैरह भी थे वहाँ पे, वो लोग भाग के आ गए थे। बाबा जी ने निकाला था सायरा को ना, बाबा जी ने खुद निकाला था। अब ये बच्चे छोटे थे ना, हाँ सायरा के, उसको उनको भी आइडिया होगा। तो बाबा जी ने कहा कि आज जो रह गया वो पा गया और जो भाग गया
वो गया कुछ इस तरह का ना तारीखी जुमला उन्होंने बोला था। तो ये सारे पकड़े गए उनके साथ ही। फिर जी हाँ मैं तो रोऊँ धोऊँ, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। मैं उसके बाद बाबा जी को मिली। ये कसूर वाला वाक़या जो हुआ था ना, उसके बाद बस बड़ी परेशानी। फिर 3 दिन उन्होंने जान के ऐसा किया था कि आगे सैटरडे संडे इनकी बेल ना हो सके। 3 दिन तो ये जेल में रहे ना बाबा जी, और जो उनके हवारी थे सारे। फिर अखबार में तस्वीर आई, वो आबिद कहते हैं जैसे मैंने देखा फोटो थी, मैंने आबिद ने अपनी बैग कर दी, तो आबिद की बैग का फोटो मैंने अपनी अम्मी वाला को बताया। मैंने कहा हाँ वो कहेंगे कि ये पता नहीं मशकूक क्या हरकतें भाई, शर्मिंदगी रहता और परेशानी रहता। फिर वो सायरा वगैरह से किसी से सलमान साहब का नंबर मिला। आबिद पहले सलमान साहब से मिले थे, उनकी दुआ उनसे शुरू हुई। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी अब मुझे नहीं पता सलमान साहब कौन है कौन नहीं, कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा कि ये जी इस तरह हो गया, तो मैं तो बड़ी परेशान हुआ। वो वापस कैसे आएंगे मुझे ये बता कि अब वो किस तरह से छुटेंगे, या कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो ये मंशा भाई वगैरह ये सारे तब जमानत के लिए कोशिशें कर रहे थे। और देखो कुदरत ये थी, मंशा भाई की वॉशरूम गए तो पीछे छापा पड़ गया। उन्होंने चूंकि रहना था ना बाहर सामान, तो पूरा बंदोबस्त। फिर 3 दिन इनको रखा उन्होंने। फिर आबिद चौथे दिन रोज़ मेरा अब्बा जी तो जाए ना उससे से रहे बड़ी। तो फिर मेरा देवर जाता था कसूर, वो करके कोशिशें करते रहे, कपड़े देने ये करने, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर क्या 3 दिन के बाद कहीं जमान पे फिर ये लोग वापस आए। फिर आबिद ने आके बताया, आबिद कहने लगे कि वहाँ पे ना कैदी जो थे ना, वो बाबा जी के आके पैर दबाते थे। तो जिस कैदी ने उनके पैर दबाए वो सब छूट गए। और कहते हैं मैं एक दिन ना नहाऊँ ना तो मुझे खारिशें शुरू हो जाती हैं सर में, मतलब डेली नहाने वाले लोग कहते हैं 3 दिन हम वहाँ नहीं नहाए, लेकिन ज़रा जो खारिश हुई हो या वो दाढ़ी में शेव ना करने से जैसे इल फीलिंग, कहते हैं बिल्कुल हमें पता। और ये मतलब जेलों में तो रहने की आदत ही नहीं है उस तरह से, लेकिन कहते हैं कि बाबा जी की वजह से हम उनकी बातें सुनते रहते थे, हम उनके पास बैठे रहते थे। इन्होंने अपना ही एक माहौल बना दिया। तो वो कसूर वाला वाक़या जो ना, हमने बड़े साल शर्मिंदगी से किसी को कि जेल की हवा भी खा के कोई बाबा भी है, कोई बाबा। फिर उसके बाद खुद भी तो बताते थे। हाँ खुद तो वो बड़े फखर से बताते थे, हम नहीं ना आगे बताते थे कि हमारे खानदानों में ना अम्मी की तरफ लोग कहेंगे। और हमारी फैमिली में ना मेरे 2 बहन भाई, हम 4 बहन भाई हैं। कट्टर शरीयत है, बड़ी बहन डॉक्टर है और एक भाई जो है वो इंजीनियर है, वो दोनों शरीयत है। तो वो तो इतना हमारे अगेंस्ट थे, अभी भी वो हमारी बात नहीं समझते। मेरी बहन कहती थी, वो डॉक्टर थी खुद, कहती ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हाथ रखो और दर्द, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम कहती वैसे हो जाता है। मैंने कहा हो तो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकती कि कैसे हो ये मुझे नहीं पता। और भाई भी, वो भाई के शेर जो है वो असल में मतलब वो तरीके से ना वो नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे पहचान है कि जैसे काला पत्थर है उस पर काला कीड़ा है, ये है वो है, ये मसाले ये वो मेरे तो ऊपर से हम लोग के मैं और ज़ेबा बहस कर लेती है, मैं नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो मैं समझा नहीं सकती उसको समझ आनी कोई नहीं, मैं मुँह दूसरी तरफ कर देती हूँ, बोलता जाता मैं फ़ायदा ही। बाबा जी कहते तो बहस करने की ज़रूरत नहीं, फ़ायदा ही नहीं। हम किसी को देखो, ये रूहानियत जो है अनसीन एक दुनिया, इस दुनिया के पैरेलल वो दुनिया चल रही है। तो उस पर बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ वो तो अच्छी वजह से बता रही है। हाँ, और बाबा जी अंदर जाके ना सो जाते थे। वो जब रेस्ट मूड में हो गया, मैं गई बाबा जी के पास, अंदर सोए। अब मेरा शुरू से ये था टाइम कम है, जल्दी आना जल्दी आना जल्दी। अच्छा बाबा जी वहाँ लेटे, मैंने बाबा जी को ऐसे चूल्हे की तरह कैसे मैंने बाबा जी का सिर ना ऐसे ऐसे कर लेना, टोपी काटी। मैं कहा बाबा जी आपको नाखून काट दूँ? तो कहते सो काट दो। तो मैंने
पर्स में कहीं नहीं कटा था। उनके पाँव के नाखून काटे, हाथ के नाखून काटे, फिर उनको लपेट के ना टिश्यू पेपर में, बाबा जी को पता सारा था कि ये कर क्या रही है, लपेट रही है उनको। फिर लपेट के अपने पर्स में नाखून रख लिए ना। मैं कहा बाबा जी मैंने आपको तंग तो नहीं किया? कहते नहीं बेटे, बाबा फिर के घर से होके आया ना, कहीं गए रहते ना गश्त पे, इसलिए बाबा को चढ़ी हुई। तुम करो 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 करो, इनका पता करो और भी जानू वाल जो छेड़ने में छेड़ ले। ये शायदा जी के घर की तो बड़ी माशाल्लाह यादें, इनको पूछे इन पटारी का। बाबा जी पूरी पटारी। मीना जी, हमें कोई ना, आप बीइंग सीनियर या बाबा जी के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड आपने किया है, तो हमें कोई नसीहत करें, कोई बात हमारे लिए। ये सारी बातें यही नसीहतें हैं और यही है जो बाबा जी की बात है। हाँ बस कोई एक बात जैसे होता ना कि कोई आप कहना चाहते हो यार ये चीज से बच नियत साफ जाओ, रखिए, नियत साफ रखिए और अपने आप को चेक करते बेस्ड रहे। है। अपने आप को बाबा जी सबसे ज्यादा ये कहते थे कि अपने आप को चेक करें कि हमने आज सारे दिन में क्या गलत किया, और ये पता होता है सबको कि हमने आज क्या किया। और वो कहते थे बस अपनी ज़ात के ना कांटे चुनो। उसका मतलब यही था कि डेली चेक करो आज क्या गलत किया और आइंदा नहीं करना। और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं। रोज वादा करते हैं, रोज वादे करते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद वही हरकत हम करते हैं, फिर वादा करते हैं, फिर वही हरकत करते हैं। सबसे अच्छा, इतने लोगों के तवीज़ों वालों के पास जाओ या बुजुर्गों के पास जाओ या जो लोग अमल बताते हैं, कोई नहीं कहता कि खुद को ठीक करो। वो कहेंगे कि जाओ फलाने ने जादू किया है, फलाने ने तावीज़ किए हैं, फलाना बड़ा जल्द है तुहाडे कोलों। ये नहीं बताते थे कि हर एक्शन का रिएक्शन है। जादू शादू असर तभी करते हैं जब हमारे में कोई बहुत बड़ी खामी होती है, तो ही जादू जो है असर करते हैं। सबसे बड़ा जादू तो हमारी नेगेटिविटी है, तो उसकी वजह से जो हम भुगतते हैं तो हम कहते हैं जादू हो गया, तावीज़ हो गया। मैं तो ये कहती हूँ जब आप किसी से लड़ें, किसी से नाराज हो जाएं, मिसाल के तौर पे जिंदगी है ना, जॉब करें, बिजनेस करें, सबसे पहले अपने आप को पिटाए मिलता है। ये ना कहीं वो बुरा या बुरी थी इसकी वजह से मैंने ऐसे किया था, फिर वो तो चलो बुरा था ना, तो तुम क्यों बुरे हुए? ठीक है, तो वो कहते हैं हज़रत अली से भी किसी ने उन्होंने कहा सबसे बड़ा पहलवान वो है जो मुंह पे कोई गाली दे रहा हो ना तो वहाँ अपने आप को कंट्रोल कर ले। चले उस पैमाने पे हम नहीं पूरे उतर सकते, तो थोड़ा आप जो है वो मीना जी के साथ मिली थी बाबा जी? पहले मीना बाजी मिली, सबसे पहले आबिद भाई मिला। अच्छा, सबसे पहले आबिद भाई का तो मैंने सुना दिया ना वाकया। अच्छा, आबिद भाई की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। अच्छा, आप वो बड़े इम्प्रेस के भी, और आबिद भाई थोड़े डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन डेज में से गुजर रहे थे जब बताया गया जी बाबा जी से, पहले सलमान साहब से, फिर इजाजत मिली तो बाबा फिर मीना गई, मीना को सिस्ट थी, बताया होगा पूरी सुन, ये वहाँ ठीक ठाक हो गए, तो ये ठीक हो गया। अब मैं इस्लामाबाद का बोलती हूँ, मेरे पीछे पड़ गई। इससे पहले मुझे गाड़ी में ना, मैं अपने इन लॉज में थी, बुला के तो मुझे दुआ कराई, तो मुझे कैसी है दुआ? मैंने बस ठीक है, करना ठीक है। मैं बहुत शौक खिलंडरी और बड़ी ऐसी थी ना, अब भी हूँ, तो वो ना अच्छा मुझे कहती नहीं तुम कर लिया करो दुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब याद आएगा कर लिया करो। उसके बाद हम इस्लामाबाद चले गए, तो बाबा जी इस्लामाबाद बहुत चौधरी सिकंदर की तरफ आया करते थे। मैं इस्लामाबाद में थी, मीना मेरे पीछे पड़ गई, दैट इट गोज टू हर, जाओ बाबा जी जाओ मिल लो, दुआ नहीं की तो मिल लो। मैंने एक दिन अपनी सहेली पकड़ी, चौधरी सिकंदर का सारा एड्रेस वगैरह लेके मैं वहाँ पहुँच गई बाबा जी को मिला। वहाँ बाबा जी मैं अकेली, मैं और मेरी फ्रेंड ही बैठे हुए थे, तो वो बस मुझे क्या पता था कि यही मेरे दिल का जानी है। ऐसा टमका फिट हुआ। उसके बाबा जी, बात समझो कि बाबा जी कलंदर हैं, उनका कोई फैज़ चलता है, वो कोई स्पिरिचुअल बंदा है, मुझे इससे गर्ज ही कोई नहीं। मेरी तरफ से ना कलंदर हो, ना फैज़ दे, कुछ ना करे, बस तू सामने बैठा रहे तो मैं तेन ताकदार हूँ, ये वाला मेरा हाल। मैं पागल हो जाती थी, ऐसे अट्रैक्शन होती थी ना बाबा लिटरली कि मैं बिल्कुल क्रैक हो जाती, खिंचे जाते थे। मेरा मियाँ कहता था कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? उनका मुंह देख बाबा जी जब इस्लामाबाद आते थे ना तो मैं ही हूँ, मैं कम हाय जाहिर मुझे ले जाए, जाहिर मुझे ले जाए, जाहिर मुझे छोड़ आए।
तो उन्होंने कहना अच्छा मैं ले जाऊँगी, मैं अब बाबा जी से पूछे बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबा जी को फोन, बाबा जी ने कभी नहीं हुआ कि फोन ना उठाया हो, मेरे साथ तो कम से कम ऐसे कभी नहीं उठाते थे। जिसका नहीं उठाना होता था मैना के लिए कभी कभी हंसा करते थे, मैना पागल थी उनके इश्क में, ऐसे उनकी गोद में मैना याद है अपने स्टाइल में। तो बाबा जी ने ना, अब मैं बाबा जी के पास बैठी थी तो फोन बजी जाए। मैं कहा बाबा जी फोन नहीं लेना, कहते नहीं मैना है, अब लड़ेगी मेरे से बड़ा कि मेरे घर पहले क्यों नहीं आए ना लाहौर में। तो वो बस उसका नहीं उठाते थे, जिसका उन्होंने थोड़ा सा मजाक के मूड में होते थे, अदरवाइज मैंने देखा वो जरूर फोन उठाते थे, कितने भी बिजी हो नहीं तो कॉल बैक। और मैं रो रही होती थी भाई, अब हर एक के अच्छे बुरे हालात आपको पता है, बापों से वैसे तो बंदा मिलता ही नहीं, जैसे डॉक्टरों के पास वैसे क्यों जाने, ठीक है हम टूटे फूटे लोग थे। और बाबा जी कहते थे कि बेटे बाबा, बाबे के पास नेक लोगों ने क्या करने वाला है, टूटे फूटे गुनाहगार ही बाबे के पास आते हैं। मुझे टिश्यू पेपर दे दे तो सबको पसीना। अच्छा, तो बाबा जी जो है उन्होंने इतना प्यार करना, उन्होंने नहीं पूछना ही नहीं कि दुख क्या क्यों आई हो, ये नहीं उन्होंने कभी सवाल किया। खुद आपने बताना है आप बता दो। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बस प्यार करना, बिठा देना है, बातें करनी है, बस उनके अंदर से ना उनकी बॉडी वाइब्स प्यार वाली है। ये नहीं प्यार का मतलब कि हाथ करके चूमना ही है किसी को। हम यूँ बैठे होते थे उनके आसपास, हम पागल हुए होते थे। हम बाबा जी को मैं और ज़ेबा ना वो हाथ लगा लें, चुमने फ्रैंक थे, उनको लिपट जाना चिपट जाना। बाबा जी घर आते थे ना उधर इस्लामाबाद, तो मुझे ना वो जब उधर कॉलोनी में एंटर होते थे ना तो मुझे पता लग जाता था, मैं जाके गेट पर खड़ी हो जाती थी, फिर बाबा जी ने आना और मैं सारे सिनेरियो में ऐसे लोग बैठे होते थे, लोगों ने इतनी स्पिरिचुअल बातें करनी, मोटे मोटे लफ्ज़, पागल दीवाना ये आशिक, बाबा जी हंस रहे हो। और मुझे क्या आता था, मैं बाबा जी को टच कर लूँ, बाबा जी के पास बैठ जाऊँ, एक लफ्ज़ नहीं मैं सुनती थी किसी का, ना बाबा जी का, ठीक है। और मेरे ज़हन में क्या चल रहा होता था, बाबा जी को इस तरह हाथ ना लगा लूँ, ये इन्होंने चाय छोड़ दी है मैं उठा के पी ना लूँ, तो ईमान से दिमाग ऐसे चलता था। तो मैं और दिल में मैं सोचती थी हाय सारे कितनी बड़ी बड़ी तसव्वुफ की बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये टर्म्स, अच्छा लिटरली मैंने ना वो टर्म्स याद करने की कोशिश करनी, मनताहा तो फलाना, मैं ये याद कर लेती हूँ। अब मुझे बाबा जी ने कहा ना तो मैंने यही बोल देना है ना, मुझे नहीं आते ये जुमले भाई, ऐसे हैं वो। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ज़ेबा तुम बताओ, आप कभी नहीं। उन्होंने मुझे इतनी महफिलों में मैं उनके साथ गश्त पे भी गई हुई हूँ, सारा कुछ किया है, पर उन्होंने मुझे नहीं छेड़ा कि ज़ेबा अब तुम बताओ तुम्हें क्या समझ आई है, पता था इसे नहीं समझ आई ये सिर्फ यहाँ मेरे लिए आती है, इसे कोई मकसद पता ही नहीं है किसी और बात का ना। बाबा जी को मिलने, ये शुरू के दिन नए मिले हुए थे, तो बाबा जी को ना मिलवा के जाहिर मुझे ना, हाँ बाबा जी हमारे घर आए हुए थे, यहाँ से हम चौधरी सिकंदर के घर गए उनको ड्रॉप करने, वापसी पे जाहिर ने कहा कि तस्वीरें खिंचवानी है पासपोर्ट के लिए। मैंने कहा ठीक है, हम तस्वीरें खिंचाने गए, हमने बच्चों ने और हमने सब ने तस्वीरें खिंचवाई। ज़ाहिर जब रिज़ल्ट लेने गए उन्होंने कहा जी आप तीनों की तो आ गई हैं, मैडम की सारी तस्वीरें जल गई हैं। कहता है मैं इतना हैरान हूँ, वो कहने लगा कि उसी रोल से, उसी कैमरे से, उसी लाइट में तस्वीर खींची है, आप तीनों की आ गई है, मैडम की तस्वीरें जल बर्न हो गई हैं। अच्छा मैंने तो उसी वक्त बाबा जी को फ़ोन पर कहा, यही होता था सिर्फ खा खा के बच्चा, इतना बड़ा कलंदर आप सोचें, उसके पास टाइम है मेरी फजूल बातें सुनने का, पर उसने सुनी, मजाल है वो मेरी बातों पे। अच्छा सबके साथ ऐसे करते थे, तो उन्होंने ना फ़ोन उठाया, मेरा बाबा जी मेरी तस्वीरें जल गई हैं, सस के उधर गिरे। कहते हैं बाबा जब उठा था बाबे की सीट पे बैठ गई थी। मैंने कहा हाँ वो आप जब फ्रंट सीट से उतर गए तो मैं फिर बैठ गई थी कहने लगे इसीलिए तस्वीरें जल गई हैं, करंट है ना बाबे के अंदर। मैंने कहा हाँ बाबा जी ये तो है, वाकई सिर्फ मेरी जली। कहते थे तू चुप करके रिसीव कर लेती है ना, इसलिए तस्वीरें जल गई हैं। बेटे बाबा खैर है सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा।
तो फिर ना मुझे प्यार से ना मैं आती थी तो मुझे कहते थे मेरी ज़ेबा बुख्तियार ना, वाहिद बाबा जी हैं जो मुझे ज़ेबा बुख्तियार कहते थे, मेरी ज़ेबा बुख्तियार आमीना, इस तरह मिला। तो ये अभी 1-2 साल पहले की बात है। अब सोचो अच्छा बाबा जी, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो मुझे ज़ेबा बुख्तियार कहते थे। तो प्यार से कभी कभी मूड में लहक के ना 2 साल हुए हैं कि मैं ना बहुत शिद्दत, तुम लोगों को तो सबको पता है कितनी शिद्दत बनती है अंदर। मैं रो रही और गाड़ी चला रही सड़कों पे, तो सड़कों पे गाड़ी चलाती जा रही हूँ। कैंट वाली साइड पे आई ना तो इधर वो लगा हुआ था बैरियर ना, वहाँ पे चेक होता है। जब मैं वहाँ आई ना तो मुझे वो मेजर था ऑन ड्यूटी, उसने रोक लिया। मैम ID कार्ड दिखाएँ, मैंने ID कार्ड निकाल के दिखाया। मैंने देख के कहता आप ज़ेबा बुख्तियार हैं? मैंने कहा मैं आपको ज़ेबा बुख्तियार लगती हूँ। कहता आप उनसे भी अच्छी हैं। यकीन मानो मैं रो रही थी और मैं आगे गाड़ी खड़ी करके हंसने लग गई। मैंने कहा बाबा जी आपकी शरारतें, आपको मैं याद कर रही, आपके अलावा मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। मैंने और मुझे जाहिद कहने लगे मेजर इज नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन इफ ही इज ऑन ड्यूटी। ये उस बोला कैसे? मैंने कहा जाहिद वो बोला ही नहीं, मुझे बाबा जी ने हंसाना था। उन्होंने वो एक खास, उन्हें पता था कि मैं ज़ेबा और 2 लोग कोई और पिंडी के जाके सबको पता होगा या किसी और का जो जानते होंगे, किसी को नहीं पता। ऐसे ही ऑलवेज डूइंग दिस। मैं तो हंसती हूँ, मैंने कहा बाबा जी आप पे लोड ज्यादा नहीं डाल दिया हमने आपके पर्दा करने के बाद? ज्यादा ही अब हमने अच्छा, जब कोई ऐसी बात होती है तो पता होता है कि ये किसके लफ्ज हैं और किसी और की जुबान से। और वो जो आपको कैसा फील कर रही होते हैं वो आप ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ। It's just
गुरु नानक ने कही है हुसैन के बारे में। गुरु नानक का शेर है, गुरु नानक साहब। जगत गुरु हुसैन है, जगत गुरु तो एमरजेंसी में उधर गए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तो सबको बातें आती है, दस सबक तो आपको देते रहते हैं, ये बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। उनका मतलब तो ये है, मिशन तो यही है कि मालिक की बात करनी, मालिक की बात सुननी। तो इधर सब इकट्ठे इसलिए हुए, इसको दुआ ही कहते हैं। तो किसी सूरत में इधर ना माई साहब माँ जी बैठे हुए हैं, भाई उनके बैठे हैं, हम इतने से दोस्त उनके बैठे हुए हैं, आप भी उनके करीब हैं, सब उनके करीब हैं। तो प्यार में कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। गालिब कहता है इश्क़ पुता फ़िक्र मुआश याद रफ्तगा, थोड़ी सी ज़िंदगी में क्या क्या करे कोई। बीच में काम थोड़ा पड़ गया उनका, हॉस्पिटल चले गए, हालांकि वो तो 7 बजे आने वाले थे। मुझे दोपहर में फ़ोन पे बात की तो यार तो जल्दी जाना है। थोड़ा सा मुझे गुस्से भी हो गया। मैंने कहा आप गुस्से हो गए, हम नहीं आपसे गुस्से होंगे, थोड़ा सा मैं से गुस्से हो आ जाते हैं। तो इसी तरह ये सब बातें बहना। इधर बात तो ये है, ये नुक्ता याद रखना, मैं अमल में ये दुआ में आपसे सीनियर नहीं हूँ, उम्र में आपसे सीनियर हूँ। ये जो नीचे बैठे हुए हैं तो वो अल्लाह अल्लाह वाली बात ही है, वो अल्लाह अल्लाह वाली बात ही है। आए दुआ आप भी कराते हैं, ये सब दुआ कराते हैं, तो दुआ दो को इकट्ठा करना कहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि दोनों को एक करना। कहते हैं बाबा जी कहते हैं दिल से दुआ कराओ। हालांकि मैं तो इस तरह की बात नहीं कहता, गाने शाने गाता हूँ, लेकिन करना पड़ता है कि दिल से माफ़ करना, लेकिन बहुत मुश्किल है दिल से माफ़ करना, जिसको पकड़ते और उसको छोड़ते नहीं हो। बहरहाल चलो, दर्स तो आपका सबको तो ये है कि दिल से माफ़ करना, मैसेज तो आपका आगे जा रहा है ना, अपने अल्लाह के आगे पेश करना होना, सोचना ये कि आपका अल्लाह कौन सा है, जो आपका अल्लाह आपने उसके आगे पेश होना, किसी गैर अल्लाह के आगे नहीं पेश होना। ये आपने जज करना है आपका कौन सा है।
तो ये ऐसे ही है। अभी को कह रहा था मुझे, मैं वहाँ जाता हूँ मुझे सुकून मिलता है, वहाँ जगह पे कम मिलता है। तो बंदे की सोच होती है, जहाँ सोचता है वहाँ पे तो वो होता है। लेकिन अपना जो प्रोफेसर होता है, मैं किसी को ये टीवी पे इंटरव्यू देता था, मैं उसको ये नहीं कहता कि मुर्शिद को, मैंने कहा को प्रोफेसर था, उसमें बंदे को पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। तो जो अपना प्रोफेसर है उसी की बात होती है, जिससे सीखता है उसके साथ ही रहना अच्छा होता है। आप तो वैसे भी साथ रहते हैं, ये भी साथ रहते हैं, और मुझे बातें नहीं आती, कम आती है, मैं और तरह की बातें करता हूँ। सर आ रहे हैं, अब सर तारक साहब बात करेंगे। सर ये तो मुझे क्या आता है, मीना बाजी का बाबू उनको सुनो, आप करें बात, आओ इधर आओ, मैं उधर चला जाता हूँ। मुझे तो जहाँ तक समझ आया, बाबा जी का मिशन प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है। बड़ी सारे जावेद भी यही बताता है, शाहजी भी यही बता रहे हैं। बताने में और करने में बड़ा फ़र्क है। हम सब इस जहाद में हैं शामिल, हम टूटे फूटे गुनाहगार नीचे खुचे लोग बाबा जी के गए पास। हमारी किस्मत अच्छी कि हमें बाबा जी मिले। बाबा जी जैसा कलंदर मेरा नहीं ख्याल कि अगली क़यामत तक सदी में कोई आने वाला है। उसकी वजह ये है कि बाबा जी हमेशा कहते होते थे, बेटे बाबा मैं तो सुन्नती हूँ, तो मैं सोचती थी नमाज तो पढ़ते नहीं तो सुन्नती कैसे यू नो, एक हमारे ज़हनों में क्या कॉन्सेप्ट है सुन्नत का, नमाज, और जो उनका पूरा किरदार है आपका वो हम पीछे डाल देते हैं। नमाज रोज़ा पहली सुन्नत है जी, करनी है। अच्छा, अब जब उनका ये मैं हर चीज़, अब जब मैं देखती हूँ बाबा जी का एक एक हर्फ बोला हुआ, और जैसे वो करते थे, उन्होंने तो करके दिखाया ना, इसलिए वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल का बंदा हूँ। इश्क को भी उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इश्क होता क्या है। कि वो कहते हैं ना, महबूब की गली का कुत्ता भी प्यारा लगता है आपको, इसलिए उन्होंने जो अल्लाह को अपना महबूब बनाया, तो फिर हम जैसे लोगों को प्यार भी बड़ा किया। अब आप खुद ही समझ लें हम क्या है। और कभी मजाल है उनकी एक इतनी बड़ी खूबी, मुझे याद, आज मैं बैठी, लोग आए हुए थे, बात हो रही थी, तो मुझे एकदम ख्याल आया, उनको जाहिर है हम उनके आगे जब आते थे तो एक्सरे था उनके अंदर पर, ठीक है, उनमें तो रब बसता है, वो अल्लाह की आंख से देखते थे, अल्लाह के कान से सुनते थे, अल्लाह के हाथों से काम करते थे, अल्लाह के पाँव से चल के। यही अल्लाह ने मोमिन की निशानी कुरान में बताई है ना, कि मैं उसके हाथ नाक कान पाँव और ज़ुबान बन जाता हूँ। तो वो हमारा तो एक्सरे आ जाता होगा उनके आगे सबका। मजाल है कभी उन्होंने किसी की ज़ात की नफ़ी की हो, या किसी को कहा हो, मनफी कोई जुमला बोला हो, मैंने नहीं सुना का मसला कि उन्होंने कहा हो कि तू इंज है तो तू इंज करेगा तो इंज होएगा। बस हाय तुम इतने अच्छे, तुम तो बाबे को लेके उड़ी गए कहीं पे। हाय अल्लाह, हमें बाबा लेके उड़ा कि हम बाबे को लेके उड़े, कुछ समझ नहीं आ रही होती थी उस वक्त। इतने फजूल होते हुए भी लगता था हम बाबा जी को लेके उड़ गए। सी, अगला वैसे ही शर्मिंदगी से अंदर भाग जाता है? तो मैं, इतना प्यारा उनका कत्ल करने का तरीका था कि खुशी खुशी बंदा कत्ल हो जाता था, पता ही नहीं लगने देते थे। कभी किसी की मनफी उन्होंने मुंह पे नहीं गिराया, तुम इस तरह हो ना इसलिए ये हो रहा है। ऑन दी होल बात करनी, जिसमें जहाँ तक मुझे इन शॉर्ट एक सेंटेंस अगर मैं कहूँ तो जहाद बिन नफ्स, इसके ऊपर उन्होंने समझो कि पूरी ज़िंदगी रिसर्च की है और यही हमें समझाया है। और नफ्स की जो बारीकियां हैं वो तो आप सबको पता है, नफरत, गुस्सा, हसद, कीना, और सबसे बड़ी बात अपने आप को खुद मुजरिम समझना, बहुत बड़ी बात, अपने आप को कटहरे में खड़ा करना, जो कि हम यूजुअली नहीं करते। हम हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी दर्द के लिए। हमेशा मैंने तो ये सही बात है, बाबा जी से मिलने के बाद हमेशा यही अपनी कोशिश की है कि जब भी कोई, एक दिन मैं सुबह उठी मुझे ठुड्डा लग गया बेड से, मैंने कहा अल्लाह मियां सवेरे सवेरे चपेड़ मैं की कीता रात नूं। यू नो, इतनी वो
अंदर आती है कि ठुड्डा भी लगा ना, तो मैंने क्या किया जो आज ठुड्डा सवेरे ही पै गया मैनू। एक बात है, इस कटहरे में वो हमें खड़ा करके गए और वो चाहते हैं कि हम इसी में खड़े रहें, अपने आप से प्यार करें। और अपने आप से प्यार करने का जाहिर है मतलब क्या है कि हर वो आदत, हर वो फीलिंग जो हमें अंदर से हॉन्ट कर रही है उसको अंदर से निकाल दें। अपने दिल को हॉन्टेड मेंशन बनाने की बजाय खाना काबा बनाने की कोशिश करें। हॉन्टेड मेंशन कैसे है? कोई किसी के कोई बात कहीं भी अंदर बंद है, कोई बुरा वाकया अंदर बंद है, पास्ट में रह रह के हम अपने आप को छील लेते हैं। हर वक्त जब भी हम पास्ट की बुरी बातों को याद करेंगे हम वापस उस फेज में जाएंगे, उतनी पेन से दोबारा गुजरेंगे, उतना ही रोएंगे, उतनी ही क्रेविंग करेंगे। पास्ट को छोड़ें, प्रेजेंट में आप आए और उस प्रेजेंट में जो बाबा जी की इतनी प्यारी बात है कि हर एक को बस प्यार करो, कुछ ना करो। मजहब, फिरका, जुबान, रंग, नस्ल से निकल के उन्होंने बात की है। सब सुन्नत है और ये मुश्किल तरीन सुन्नत है जिसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया। मैं अभी यही बात कर रही थी कि एक सेमिनार में बोले आके, कहते हैं पहले साहब ने तकरीरें कहा नहीं ना, फिर बाबा जी आए आके बोले, कहते हैं मैं इल्म का नहीं इश्क का बंदा हूँ, बातें नहीं करता करके दिखाता हूँ। वो बाबा जी के जुमले थे कि यू ले करंट नहीं दौड़ता, पूरी जो जितना हॉल था ना मेरा ख्याल है वो हॉल लरस गया होगा उन जुमलों से। और जब वो अल्लाह कहते थे तो बस वही बस हो जाती, एक अल्लाह पे हो जाता था, एक अल्लाह पे इतनी वो वाइब्रेशन होती थी कि पूरा एक अल्लाह कहने पे ही ना बंदा फ्लैट। तो और गश्त पे, हर वक्त गश्त पे, इधर जा, इतना कम खाना, इतना कम सोना, वो उन लोगों में से थे जिनका रब खिलाता पिलाता और सुलाता, वो उन लोगों में से। तो मैं तो समझती हूँ कि हम लोग बड़े लकी हैं सारे, हमें बाबा जी जो है वो मिले हैं। अदरवाइज बाबा जी कहते थे अरे दुआ होगी कोई तुझे पीछे से किसी की, क्यों बात समझ में आती है, दुआ के बगैर बाबा जी नहीं थे मिल सकते। आपका मतलब है कि अता सारी दुनिया जो पीर मेरा कल्ला है, सारी दुनिया जो आपके मतलब पीर मेरा कल्ला है, जिन लोग बंदा कहंदे बंदा नहीं हो और एक चीज जो अल्लाह से प्यार करना हमें बाबा जी ने सिखाया। भाई बचपन से बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन समझ पढ़ के ही उतनी आती थी। बाबा जी ने तो ऐसे डे वन से ना अल्लाह से प्यार करना सिखा दिया, कैसे प्यार करना है, क्या करना है। अगर अल्लाह कहते थे ये इश्क की लाइन है, अगर अल्लाह से इश्क है तो उसके बंदों से प्यार करो, उसके बंदों के लिए कुछ करो। अपने आप से प्यार करने का मतलब यही है कि खालिक की तख्लीक को प्यार से प्यार करो, क्योंकि अल्लाह ने तो नीचे नहीं आना, ये जो उसने अपनी उसकी तख्लीक है यही इसमें ही रहता है, लोगों के दिलों में रहता है। तो लोग पूछते थे कि बाबा जी अल्लाह से कैसे प्यार करना है, तो कहते थे कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, अपने आप को चेंज करो, लोगों से प्यार करो, उनके लिए काम करो। और वही काम दे के गए सूरत रहमान का जो आता नहीं। असल ये था कि वो कहते थे कि बुद्ध बनाओ, हमेशा ये कहते थे कि ये जो छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाती है तो बहुत छोटी चीज़ है। असल बात ये है कि लोगों के दिलों को बदलो, नया बुद्ध बनाओ। तो ये बात ही लोग कहते थे कि बुद्ध कैसे बनाएं, इसका मतलब ये था कि इसी बंदे को नया बदला, इसके दिल को बदल दो, रूह को बदल दो। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बड़ा राज है, और राज की फाउंटेन हाउस को सब जानते हैं ना। अच्छा वहाँ पे जब हमें विजिट करवाई, उसमें जो उनके पेशेंट्स क्योर हो चुके होते हैं बेहतर, उन्हीं को वो गाउन पहना के ना आगे कहते हैं कि चलो जी अब आप विजिट करवाएं लोगों को। बाबा जी ने वो काम किया है। असी ते आप बीमार है ना, सानू गाउन पा के डॉक्टर है जा हूँ मरीज ठीक कर। सी बाबा जी कहते थे मेरी सीढ़ियाँ जब कोई चढ़ता है वो बीमार होता है बेटे बाबा, जब उतरता है तो वो डॉक्टर बना हुआ आता है, मैं उसे डॉक्टर बना देता हूँ। वो फाउंटेन हाउस वाली गल है, असी आप बीमार हाँ,
جیسے جیسے ہم سورہ رحمان لوگوں کو بتاتے ہیں, جیسے جیسے ہی ہم لوگ دعا کرواتے ہیں, ہمارا اپنا اندر صاف ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں دعا کراتے وقت کہ میں اگلے کا بھلا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, ہم اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب دوسرے کو دعا کراتے ہیں یا سورہ رحمان کا بتاتے ہیں تو اس کے عوض پتہ نہیں کہیں ہماری اپنی اندر کی گندگی صاف ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو اگر دعا کرانے بیٹھ گئے تو ہم کوئی پیر فقیر بن ہی گئے, نہیں بنے. وہ فیض تو پیچھے سے آ رہا ہے, کرنا اسی نے ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم تو بس ڈبل روٹی بیچنے والے لوگ ہیں, آگے سیلز مین اور سیلز گرلز نہیں ہوتی, ہم تو وہ ہیں. سارا پیچھے سے چارج آ رہا ہے سارا. بابا جی کہتے ہوتے تھے ایگزیکٹلی بڑا بلب بھی وہاں سے جل رہا ہے, زیرو کا بھی ایگزیکٹلی. تو بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ بیٹے بابا مجھے پاگلوں کی طرح پیار کرنا. تو میں نے کہا بابا جی میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں. سب کو کہتے ہوں گے نا, میں اپنا اس لیے بتا رہی ہوں. گھر آتے تھے جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ہم یہ باتیں بہت کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ نہیں بیٹے بابا ایسے نہیں, پاگلوں کی طرح جنونیوں کی طرح پیار کرنا مجھے. تو اس وقت نئی نئی تھی, بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. اب سمجھ میں آئی ہے کہ بابا جی سے پیار کرنے کا مطلب ہے انہیں اپنے دل میں بسا لینا. اور جس کو آپ دل میں بسا لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو اس کے اندر ہے وہ میرے اندر. ٹھیک ہے, پیار نہیں ہوگا تو وہ خیال میں بھی نہیں ہوگا. جب وہ خیال میں ہی نہیں ہوگا, تار سوئچ میں لگی ہی نہیں, تو کرنٹ کہاں سے آئے گا. اس لیے وہ کہتے تھے بس بابے کو اگر پیار کرنا ہے تو پاگلوں کی طرح کرنا ہے, جنونیوں کی طرح کرنا ہے. ادروائز چھوٹے موٹے پیار کا فائدہ کوئی نہیں, بس وہ پھر بیماری ٹھیک ہوگی جو جسمانی ہوگی. اصل بیماریاں تو اندر ہیں نا. اور انسان جب تک مر نہیں جاتا وہ لرننگ پوزیشن میں ہوتا ہے, ہر وقت لرن کر رہا ہوتا ہے. ہر واقعے سے, اچھے سے برے سے ہم ایک سبق حاصل کرتے ہیں. اور بابا جی نے وہ آگہی ہمارے اندر جگائی ہے کہ ہر واقعے سے, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, اس سے ایک سبق اپنے لیے حاصل, اپنے لیے کہ زیبا تو نے کیسے چلنا ہے اب زندگی میں. اب یہ ہوا ہے نا تو اس میں تیرا قصور کتنا ہے, اگلے کو چھوڑ دے, اگلا اپنے لیے خود ذمہ دار ہے, تو اپنے لیے خود ذمہ دار ہے. اب بتا کیا کرنا ہے تمہیں. یہ آگہی ان کی بہت خوبصورت چیز ہے جو بابا جی اندر اپنے آپ کو ہمارے جگا کے یہ آگہی دے گئے کہ بیٹے بابا اب ہم کیا کریں. آسان کام ہے نا, نظر لگ گئی ہے مجھے, میں بڑا اچھی لگ رہی تھی, نظر لگ گئی. کیوں لگی ہے بھائی تمہیں نظر, تمہارا امیون سسٹم اتنا ویک ہے اندر سے. اب میں ادھر گیا, تویز لڑ گیا کسی کا, تویز لڑ گیا, تمہیں کیوں لڑا, تم ایک نیولی بورن بچے سے بھی ویک ہو اندر سے. ٹھیک ہے, جادو, اچھا میں نے کہا ایکسکیوز می, بالکل ہو سکتا ہے جادو اگر آپ کا کردار رسول پاک جیسا ہو. کہتا ہے جی وہ کیسے. ان کا ایسے, انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی, تو ان کا نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا, نہ وہ گناہ آگے درد بن کے آیا, ان کو جو ملا اللہ کی طرف سے ملا. تو جادو تو اس بندے پہ ہو نا جس نے خود کبھی غلطیاں نہ کی ہوں. ہم تو خود ہی اتنے گناہ گار ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کسی کو نفرت کر رہے ہیں, کبھی کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں, کبھی کسی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کبھی کسی کا مال کھا رہے ہیں. تو وہ ہمارے آگے نہیں آنا. فصل برائی کی اگ کے آگے آتی ہے تو ایزی کام کیا ہے, جادو تھا میرے اوپر, میرے پہ جادو چل گیا, جادو ہو گیا تمہارے, تم نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی ہے تو جادو ہی ہوگا. پھر اپنے آپ کو چیک تو کریں. یقین مانے آج اتنی آزمائی ہوئی بات ہے, میں تو اپنی باتیں بتاؤں گی, مجھے نہیں پتا باقی. ذرا سا دل میں بھی اگر آپ کسی کے لیے اینگر یا کینہ اتنا سا لائیں, وہیں چپیٹ ٹھا منہ کے اوپر پڑتی ہے, وہیں آپ کو پتا لگ جائے گا کس ایکشن کا ریئیکشن. یہ اتنی جلدی یہ سب ہوتا ہے, ایکشن کا ری ایکشن. تو اگر بڑے بڑے کرائم کریں گے تو کیا ان کرائم نے پھل نہیں دینا. اگر اچھائی پھل دیتی ہے تو گناہ بھی پھل دیتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں, ان کی عدالت اور ہے, اور جو گناہ دوسروں کی زندگیاں خراب کریں ان کی عدالت اور ہے, وہ کڑی عدالت ہے, اور وہ اگتا بھی بڑی جلدی ہے اس کی فصل. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر بابا جی مجھے نہ بلاتے تو میں تو وہیں مر جاتی ساری زندگی. شکر ہے انہوں نے مجھے بلا لیا.
भेजा भी उन्होंने ही था। कहते थे डाडे महाज पे डाडी काकी भेजो। मैं इतना रोती थी। ये फायजा को याद है, कहती है तुम आई थी बाबा जी को मिलने तो तुम रोई जब मैंने नहीं जाना, मैंने कहा मुझे ना भेजे। बहुत रोती थी मैं। बाबा जी मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रहूँगी। कहते थे नहीं नहीं डाडे महाज पे डाडी काकी भेजो। वो फिर पता नहीं क्या महाज था क्या नहीं, हम तो सुना मेरे ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ वो ਆ जाने जिन्ना का काम सी तो खुश बड़े ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ कहते बाबा जी कहते हैं अपने आप से प्यार करा करो, इसका मतलब है कि मखलूक के खुदा से प्यार किया करो। जिन्हें कि मैंने समझ गया एक लाइन उन्होंने सुनाई तो मैं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਾਇਦ। علم القرآن خلق الإنسان علم